Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fayyaz Muhammad. I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today is our lecture 6. Before starting our lecture, as our previous routine is to iterate our objectives of the course. The objectives of the course are: number one is to develop a web-based application and deployment of that web-based application. Now let's see what are the learning objectives of our today's lecture. The learning objectives of today's lectures are as follows. Number one, in this lecture, we will start from organizational concepts in C# programming language, how we can organize programs using C# programming language. Then we will try to understand the syntax and semantics of C programming language. Then we will have a look on basic elements of C# programming languages. Next, we will review the previous C# program, a very simple program that we have developed in our previous lecture. After reviewing the C# program, we will discuss the basic structure of a C# program. And in the end, we will obtain a basic familiarization of C# program components using working example of our previous or first C# program. What we have discussed in the previous lecture. This is the summary of our previous lecture and we are going to recap it. In previous lecture, we discussed what is a program, what is programming and what is programming language. Then we discuss what are basic programming language elements. Next, we discussed the .NET framework and C# programming language. What is the relationship between .NET framework and C# programming language and how these works together. Then we have a look on a working of .NET with C# programming language. In the last, we developed a C# program. Now, in this lecture, we are also starting from the previous C# program. First of all, we will discuss what are organizational concepts in C# language. Following are the resources that we have consulted for the creation and development of this lecture. You all are required to view these online references and your textbooks as well as your reference book to have a solid understanding of C# programming language organizational concepts. Let's see what are organizational concepts in C# language. Following are the key organizational concepts in C#. Number one, C# C# is used to write programs and these programs contains namespaces, types, members and assembly. Let's discuss one by one what is a program. As we discussed in our first and second lecture, program is a set of instruction and in C#, a program consists of one or more source files. These C# source files typically have the file extension .cs. Every C# program consists of one or several class definition. C# permits
the source text of a program to be stored in several source files. Means सी शार्प का जो भी प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम या उस फाइल की एक्सटेंशन CS होगी और एक सी शार्प का प्रोग्राम बहुत सारी फाइलों पर मुश्तमिल होगा. When a multi-file C sharp program is compiled, all of the source files are processed together and the source file can freely reference each other. Means अगर एक सी शार्प का प्रोग्राम बहुत सारी फाइलों पर मुश्तमिल है, जब हम उनको उसे कंपाइल करेंगे तो वो सारी की सारी एक ही फाइल के तौर पे बिहेव करेंगी और इस तरीके से हम एक उस फाइल के किसी भी पार्ट को रेफरेंस करेंगे. नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज नेम स्पेस. C sharp programs are organized using namespace. First of all, we are discussing what is a program. Then we are discussing C sharp programs are organized using namespaces. Namespace provide a hierarchical means of organizing C sharp programs and libraries. Means हम प्रोग्राम के अंदर नेम स्पेसिस को यूज करेंगे और ये नेम स्पेसिस उसमें जो डिफरेंट हम लाइब्रेरीज यूज करेंगे उनको ऑर्गेनाइज करने में रोल प्ले करती हैं. नेम स्पेसिस में क्या होता है, कमिंग लेक्चर में हम इसको बड़ी डिटेल से देखेंगे. नेक्स्ट टाइप्स. व्हाट आर टाइप्स? टाइप इज ए क्लास और इट कैन बी एन इंटरफेस और इट कैन बी ए स्ट्रक्चर. In the next lectures we will discuss in very much detail what are types or classes and what are members. As I told you, types are classes. Classes contains members. Members can be any property, field or events. Next is the assemblies. What are assemblies? When C sharp programs are compiled, they are physically packaged into assemblies. Assemblies typically have the file extension .exe or .dll depending on whether they implement application or library respectively. In simple words, we can say in C sharp programming language, following are 5 organizational concepts. First of all, a program consists of various namespaces and a namespace consists of various types and a type consists of various members. And whenever C sharp program is compiled, then it is converted into the file having file extension .exe or DLL. If we are creating a library, then the extension will be .dll. If we are creating an application, then the extension of assembly will be .exe. These assembly contains executable code in the form of intermediate language, as we have discussed previously, in the form of a Microsoft intermediate language or simply intermediate language. Before it is executed, the MSIL code in an assembly is automatically converted to processor specific code by the just-in-time compiler of .NET Common Language Runtime CLR. Means ये जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है .cs एक्सटेंशन से .exe और DLL. अगर आपने एप्लीकेशन बनानी है तो फिर उसकी एक्सटेंशन होगी .exe. अब exe फाइल is called an assembly. And what does this it contains? It contains Microsoft Intermediate Language instructions along with metadata. And before this file is executed, the MSIL or intermediate language instruction or code is automatically converted to a processor specific code by just-in-time compiler that is provided by .NET Common Language Runtime, that is also called CLR.
ये तमाम कंसेप्ट हम पिछले अपने लेक्चर्स में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड. This is our first program. As you are seeing, it is starting from using system, namespace, hello world, curly braces, left curly braces, then class program, then left curly braces, फिर static void main string args, next left curly brace, फिर hello program in C sharp, console.writeLine parenthesis contains hello world string, right curly brace, then again right curly brace, and this curly brace ends our program. Before we discuss or study basic building blocks of C# programming language, let's have a keen look at a bare minimum C# program structure that is in front of you, so that we can take it as a reference in upcoming lecture. By using this C# program, we will discuss the syntax and semantics of a C# programming language. What is a syntax and what is semantic? This will be our next topic. Simply, syntax means the grammar or rules to write statement. If we write statement without proper syntax, the program will not be compiled and will generate syntax error. Let's see closely our first C program that is in front of you after looking this. Next, we are going to discuss C# programming syntax and semantics. As I previously told you, what is a program? Program consists of instruction to solve a problem or to fulfill a task. These instructions are called actions that a program takes. Now here a question arises. The question is how these instructions are written. These instructions are written using any programming language. Now our programming language is C#. Hence, programs are designed or written using common building blocks known as programming construct. These programming constructs form the basis for all programs. It means if we have an understanding of programming construct, then by using those programming construct, we can write any program. Next, statement and expression are building block of any program. In the first part, we are discussing programs are written using common building block, and these common building blocks are programming construct. Now we are talking about statement and expression are the building block of any program. Means using common programming construct, we can write statements and expression. How we can write statements and expression? This will we will discuss it in next slide. Action that a program takes are expressed in statement. If a program performs a specific task, then to perform that specific task, program perform some actions. And what are these actions? These actions are expressed in statements. What are statements? Statements are made up of keywords, expressions and operators. इसका मतलब ये हुआ एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होंगे और कुछ एक्सप्रेशंस होंगे. अब ये स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन क्या हैं? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी प्रोग्राम कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ
एक्शन परफॉर्म करता है और उन एक्शंस को हम स्टेटमेंट्स की मदद से लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम में। और वो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स बनती हैं कीवर्ड से, एक्सप्रेशन से और ऑपरेटर से। नो, what are keywords, what are expression and what are operators? In the coming lecture we will discuss in very much detail what are expressions, keywords and operators. Simply, expression is a combination of operands and operator that evaluates to a value is called expression. Keywords are reserved word in a particular programming language. And what are operators? Very simple. Operators, you are very much familiar from your primary classes. There are four basic operators in arithmetic, that are addition, subtraction, multiplication and division. Now in C sharp a complete instruction or action is called a statement. जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई भी प्रोग्राम जो हमने लिखना है वो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट लिखेंगे कि कुछ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट हमें मिल जाएगा और उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम अपने एक्शंस जो टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें करने होंगे वो लिखेंगे। वो एक्शन अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई ना कोई स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और सी शार्प के अंदर जो भी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होगी या एक्शन हम एक्सप्रेस करेंगे उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं? एक स्टेटमेंट कह देते हैं। Next, C sharp uses the keywords to build its programming construct. As I told you earlier that statements are made up of keywords, expression and operators. कि statements किससे मिलकर बनती हैं? वो बनती हैं keywords होंगे या उसके अंदर expressions, keyword, expression और operator, या statement के अंदर simply expressions भी हो सकते हैं। और जैसे लास्ट पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं, सी शार्प यूजेस कीवर्ड्स टू बिल्ड इट्स प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। और in the next lecture we will discuss in very much detail what are keywords and what type of keywords are available in C sharp language. C sharp program syntax and semantics. What is a syntax? The form or shape of language. The form or shape of language. Language means programming language. Or syntax of a language is the order of keywords. Syntax से मुराद ये है कि जो लैंग्वेज कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड कर रही है वो इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट लिखते हुए किस आर्डर में आप लिखेंगे, जिस आर्डर में आप लिखेंगे वो उसका सिंटैक्स कहलाएगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। तो सिमिलरली सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर या रूल्स या ग्रामर फॉलो करेंगे ताकि हम सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी इंस्ट्रक्शंस लिख सकें। अगर हम, जैसे मैंने अभी अर्लियर आपको बताया कि अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में या प्रॉपर सिंटैक्स में नहीं लिखेंगे, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, मींस कि वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होगा। किसी भी प्रोग्राम को असेंबली में कन्वर्ट होने के लिए प्रॉपर सिंटैक्स में होना जरूरी है। जैसे ह्यूमन बीइंग, आप किसी अधूरे जुमले से भी कोई ना कोई मतलब समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स ऑलवेज डिमांड precise statements to perform any task.
That's why first of all we should try to understand the order of keywords. In other words, we can say the syntax is the user interface of a programming language. Means जैसे किसी भी प्रोग्राम का कोई इंटरफेस, कोई स्क्रीन, कोई उसको चलाने का तरीका होता है, इसी तरह सिंटैक्स भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी स्टेटमेंट्स उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखकर असेंबली में अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं. इन सिंपल वर्ड, statements in C# follow a well-defined set of rules describing their format and construction. ये सिंटैक्स ही है जिसकी वजह से हम प्रोग्रामिंग को कोडिंग भी कहते हैं. देखें, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं. कोडिंग, व्हेन वी से आई एम कोडिंग, इट मीन्स आई एम राइटिंग ए प्रोग्राम. बट वो प्रोग्राम जो मैं लिख रहा हूं एक स्पेसिफिक ऑर्डर और स्पेसिफिक कीवर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखने की कोशिश कर रहा हूं. उस स्पेसिफिक ऑर्डर का हो सकता है ह्यूमन बीइंग के लिए कोई मतलब ना हो. द स्पेसिफिक ऑर्डर इज फॉर द कंपाइलर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. हियर आवर लैंग्वेज इज C#. जैसे भी हमने अपने पहले प्रोग्राम में देखा, हम दोबारा देख लेते हैं उसको थोड़ा सा, कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है, हेलो वर्ल्ड, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, एंड दैट statement or instruction is terminated at semicolon. Why it is terminated at semicolon? This is the syntax of C#. Each instruction will be terminated on a semicolon. मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से इसको सिंटैक्स को समझ सकते हैं. नेक्स्ट वापस चलते हैं अपनी उसी स्लाइड की तरफ, फिर इसको हम देखते हैं कि कहां पे थे. अब नेक्स्ट बात आ रही है सिमांटिक्स की. सिमांटिक, द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ कीवर्ड्स. व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब? वेरी सिंपल, कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो आपने कीवर्ड्स लिखे उनका क्या मतलब है, वो किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? सिमांटिक. सिमांटिक्स इज द कंटेंट और मीनिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सिमांटिक्स इज व्हाट डू यू मीन और व्हाट यू आर एक्सप्रेसिंग इन द कोड. कोड से यहाँ क्या मुराद? इन अ पर्टिकुलर सिंटैक्स. अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर सिंटैक्स या पर्टिकुलर कोड में नहीं लिखेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, और इट विल नॉट बी ट्रांसलेटेड बाय C# ट्रांसलेटर. C# provides a variety of statements to perform various actions. What type of action we can perform using C# language? Common action includes, we can declare a variable, we can assign values to our variables, we can call various methods to perform tasks, we can loop through collections, or we can perform a task number of times by using looping action. Next is, we can branch to one or another block of code depending on a given condition. These are the some of the common action that we can perform using C# statements.
flow of control or flow of execution. What is this? It is also called control flow. It is also called control flow. Statements in a program are generally executed in a sequence. What do you mean by sequence? When you write a program, you type statements into a file. The extension of that file will be .cs. Without control flow statements, the interpreter executes these statements in the order they appear in the .cs file from left to right, top to bottom. You can use control flow statements, control flow statements in your program to conditionally execute statements, to repeatedly execute a block of statement, and are to otherwise change the normal sequential flow of control. Let's see what is flow of control. जब भी कभी आप कोई भी प्रोग्राम आप C# में लिखेंगे, उस फाइल की एक्सटेंशन होगी .cs. जैसे जैसे आप उसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, वो स्टेटमेंट लेफ्ट टू राइट चलेंगी एग्जीक्यूशन टाइम पे, और जहां सेमीकोलन मिलेगा वो स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगी और फ्लो ऑटोमेटिकली, देखिए मैं फ्लो की बात कर रहा हूं, फ्लो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा. एंड सो ऑन, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम. लेकिन बाज ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स हम जंप कर देते हैं या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इग्नोर कर देते हैं. अगर कोई कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट्स, एल्स अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दें. अब ये यहाँ पे क्या होगा कि आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल हो सकता है कुछ स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दे और कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दे. इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक लूपिंग स्टेटमेंट्स भी होती हैं, या फ्लो ऑफ कंट्रोल में लूपिंग भी एग्जीक्यूट हो रही होती है, जिसको हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं. अब लूपिंग क्या कर रही होती है? उसको जो हमने कंडीशन दी होगी या उसको जितनी बार कहा होगा कि आने वाली स्टेटमेंट्स को उतनी मर्तबा रिपीट कर दे, उतनी मर्तबा चला दे, उतनी दफ़ा चला दे, जो भी आप वर्ड या टर्म यूज कर लें. तो इस सिचुएशन में फ्लो ऑफ कंट्रोल एक लूप की सूरत में बार बार उन स्टेटमेंट्स को जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी चलाता जाएगा. एक दफ़ा चलाना, 10 दफ़ा चलाना, 1000 दफ़ा चलाना. लेकिन फिर देख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग एनी प्रोग्राम. आप सिंपली क्या करते हैं, टाइप करते हैं अपना प्रोग्राम, किस में, जाहिर है आप विजुअल स्टूडियो एडिटर यूज करते हैं. उस एडिटर को यूज करते हुए आप अपना प्रोग्राम C# लैंग्वेज में टाइप करेंगे. C# लैंग्वेज का सिंटैक्स फॉलो करेंगे. C# लैंग्वेज का सिंटैक्स फॉलो करेंगे कि हमें किस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स लिखनी है. जब वो स्टेटमेंट्स प्रॉपर सिंटैक्स में आप लिख देंगे तो उन स्टेटमेंट्स ने जब कंपाइल होने के बाद CLR की मदद से जब एग्जीक्यूट होना है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की मदद से जब उसने एग्जीक्यूट होना है, उस एग्जीक्यूशन टाइम पे डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन है लेफ्ट टू राइट, कि आपकी पहली स्टेटमेंट लेफ्ट से शुरू होगी और वो चलती जाएगी राइट, जहां जाकर वो स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी. जाहिर है सिंटैक्स है उसका, जब भी स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी सेमीकोलन आ जाएगा और ऑटोमेटिकली उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो फिर लेफ्ट टू राइट चलेगी. सेमीकोलन आएगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा. ये डिफॉल्ट फ्लो है. स्टेटमेंट्स एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन बाज ऐसी सिचुएशंस हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट कराना चाह रहे होते हैं और कुछ स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट कराना नहीं चाह रहे होते. तो ऐसी सिचुएशन में
कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या करती हैं? ब्रेक अप द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बाय implying decision making or looping or branching and enabling your program to conditionally execute particular blocks of code कि आपने कुछ स्टेटमेंट्स रखी हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट होगी. दिस इज द फ्लो ऑफ कंट्रोल और सिंपल वर्ड्स कंट्रोल फ्लो और फ्लो ऑफ कंट्रोल. The order in which statements are executed in a program is called the flow of control or flow of execution or control flow. These three terms or phrases are used to represent execution of statements. The flow of control may vary every time that a program is run, depending how the program reacts to input that it receives at runtime. प्रोग्राम का फ्लो हर दफ़ा देखें, तवज्जो से इसे समझने की कोशिश करें. प्रोग्राम का फ्लो हर दफ़ा चेंज हो रहा होगा. वो चेंज क्यों हो रहा होगा? उसको जिस तरह का डाटा मिलेगा वो उस डाटा को देखकर डिसीजन करेगा किस ब्लॉक को चलाना है और किस ब्लॉक को नहीं चलाना, इसलिए हर दफ़ा बदल रहा होता है. देयर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल स्ट्रक्चर. ऑल प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम आप लिखेंगे वो इन 3 में से कोई एक फ्लो या तीनों के तीनों फ्लो फॉलो कर रहे होंगे. सबसे पहला फ्लो तो सीक्वेंस है. वो सीक्वेंस क्या है? जिस ऑर्डर में आपने इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स लिखी हैं, दे आर प्रोसेस्ड वन बाय वन, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम. दिस इज द डिफॉल्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल कि अगर कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो लेफ्ट से राइट पे और फिर टॉप टू बॉटम चलता चला जाएगा. नेक्स्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या चीज है? सिलेक्शन. नेक्स्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इज सिलेक्शन. इट डिटरमिन्स विच पाथ ए प्रोग्राम टेक्स व्हेन इट इज रनिंग. कि जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा तो आपकी एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होगा, वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है. अगर वो कंडीशन, वो शर्त, वो रेस्ट्रिक्शन अगर पूरी होती है तो आप एक खास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे. अगर नहीं हो रही तो जाहिर है अगला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करेंगे. तीसरा फ्लो ऑफ कंट्रोल है इटरेशन. इटरेशन इज द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ कोड व्हेन अ प्रोग्राम इज रनिंग. कि आप कोई टास्क बार बार परफॉर्म कराना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप देखें वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे तब मूव करेगा जब पहले वाली कंडीशन इटरेशन की फुलफिल कर लेगा. मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि जी हमारी यूनिवर्सिटी में या हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, जब तक इनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो जाती, प्रोग्राम एक एक स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क करता जाए. तो ऐसे सिचुएशन में हम इटरेशन या लूपिंग यूज करेंगे और हम उसमें देंगे कि जी एक एक रोल नंबर ले और उसको वो उसके अटेंडेंस मार्क करता रहे. लेट्स सपोज देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास. व्हाट विल हैपन? 40 टाइम्स वो वन बाय वन बाय रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट वो इनपुट के तौर पे ले रहा होगा और एग्जीक्यूट करेगा. वो स्टेटमेंट एक दफा लिखी जाएगी, वो इंस्ट्रक्शन फॉर मार्किंग द अटेंडेंस, और वो एग्जीक्यूट होगी अप टू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. तो देयर आर these three are the basic type of flow in any programming language, and in C# we will also follow these 3 types of flow. कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें ये 3 फ्लो, 3 में से एक तो जरूर होगा, दैट इज सीक्वेंस. या सीक्वेंस और सिलेक्शन भी हो सकता है. सीक्वेंस कंपलसरी है, फिर इटरेशन है. सीक्वेंस क्यों कंपलसरी है? जब भी प्रोग्राम शुरू होगा, एग्जीक्यूशन शुरू होगी, चलेगा, रिजल्ट स्क्रीन पे आ रहा होगा तो वो हमेशा पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, लेफ्ट टू राइट देन टॉप टू बॉटम. तो हर स्टेटमेंट को ऐसे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, top to bottom, and so on. What are the elements of C# language? As we discussed in our 3rd or 4th lecture, each programming language has some basic elements.
with the help of those basic elements you can understand any of the programming language better as compared to without knowing the elements of any programming language. Let's see what are the elements of C sharp programming language. Following topics provide an overview of the elements of the C sharp programming language. A C sharp language. Number one is program structure. In the next slide, we will discuss what is a program structure. After discussing program structure, in next lecture, we will discuss what are types, means, what are data types and variables, expressions, statements, classes and objects, arrays, interfaces, delegates and attributes. These are the basic elements. If you know these elements very well, then you can write any sort of program. अब देखें क्या हुआ. पहले हमने डिस्कस किया सी शार्प के ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको बताया. सी शार्प में एक प्रोग्राम होगा. अब प्रोग्राम में क्या है भाई, प्रोग्राम में कोई नेम स्पेस है. अब नेम स्पेस क्या है, अब ये नेम स्पेस कलेक्शन ऑफ क्लास है. अब क्लास क्या है, क्लास एक डेटा स्ट्रक्चर है. अब उस डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें मेंबर्स होंगे, उसके कोई कुछ मेंबर फंक्शन होंगे, मेंबर मेथड होंगे, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होंगी. ये सारी की सारी लैंग्वेज इसी पे हम आगे सारे के सारे लेक्चर में बड़ी डिटेल से देखेंगे. व्हाट इज ए क्लास, व्हाट इज ए नेम स्पेस एंड व्हाट आर मेंबर्स, व्हाट आर मेंबर फंक्शन और मेथड्स. नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू इन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट असेंबली. अब आपको याद हो जाना चाहिए सी शार्प में असेंबली किसको कहते हैं, कि जो भी आपका MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड होगा, उसकी जो फाइल होगी उसको हम असेंबली कह रहे हैं. और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब आपके सामने, जिनको हमने कहा एलिमेंट्स ऑफ द सी शार्प लैंग्वेज, जो आपको आगे फर्दर लैंग्वेज की एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे. तो चूंकि हम सी शार्प को यूज कर रहे हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है. उस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को देखने के बाद फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ वन बाय वन मूव करते चले जाएंगे. लेट्स सी अगेन व्हाट वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज वी आर कॉलिंग इट अ स्टार्टिंग पॉइंट यूजिंग, फिर एक ब्लैंक लाइन आ गई, नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड एंड सो blah 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 blah. This is our first program that we have written in our previous lecture. Now discuss this in detail. A basic C sharp program consists of following section. Number one is using directive. It is generally located in the first line of the program, as here using system, और उसके फौरन बाद क्या आ रहा है, सेमीकोलन. ये उसका सिंटैक्स है कि आपने कैसे लिखना है. यू स्मॉल है, बाई द यू ऑफ यूजिंग इज इन स्मॉल केस because using is a keyword, it has specific meaning for the compiler. Next we will discuss what are keywords. Using system means that we can use classes from the system namespace. देखिए पहले भी मैंने आपको बताया .NET हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारी बिल्ट इन नेम स्पेसिस, और उन नेम स्पेसिस में क्या होती हैं, क्लासेस. अब हम अपने इस प्रोग्राम में उस सिस्टम नेम स्पेस से कोई क्लास यूज करके कोई टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जो आप यहां देख लेंगे, दैट इज कंसोल डॉट राइट लाइन, और फिर पैरेंथेसिस में हमने उसको क्या पास कर दिया, हेलो वर्ल्ड. अब ये कंसोल डॉट राइट लाइन ये कहां से आ गई, ये कंसोल क्लास सिस्टम नेम स्पेस का हिस्सा है. हमने यहाँ पे लिखा नहीं सिस्टम डॉट कंसोल, चूंकि हमने उसको ऊपर बता दिया कि हमने सिस्टम नेम स्पेस को इस प्रोग्राम में इंपोर्ट किया, और इस सिस्टम नेम स्पेस में से एक क्लास जिसका नाम कंसोल है वो हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे. ये बिल्ट इन क्लास है, मतलब इट्स प्रोवाइडेड बाय द .NET फ्रेमवर्क. अच्छा,
A C sharp program can and generally have multiple using statements. और नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ एक ही यूजिंग स्टेटमेंट है, एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा यूजिंग स्टेटमेंट होंगी और होती हैं। क्यों होती हैं? जिन क्लासेस को हमने यूज करना है बिल्ट इन को, अदरवाइज हमें फिर वो सारा कोड खुद लिखना पड़ेगा। यही सी डॉट नेट फ्रेमवर्क का की एडवांटेज है। फिर देखें यूजिंग सिस्टम, और इस स्टेटमेंट के बाद एक ब्लैंक लाइन है। अब ब्लैंक लाइन क्या है, अब आगे हम देखेंगे कि वाइट स्पेस और कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट नेम स्पेस डिक्लेरेशन। देखें नेम स्पेस एक कीवर्ड लिखा, फिर उसके बाद हेलो वर्ड आ गया, और उसके बाद एक ब्लॉक ऑफ कोड शुरू हो गया जो लेफ्ट करली ब्रेसेस से शुरू हुआ और राइट करली ब्रेस पे आकर खत्म हो गया। अब नेम स्पेस इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज योर कोड एंड इट इज ए कंटेनर फॉर क्लासेस एंड अदर नेम स्पेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रोग्राम, देखिए हमारा प्रोग्राम नेम स्पेस पे मुश्तमिल होगा और वो नेम स्पेस मुख्तलिफ क्लासेस को कंटेन करेगी। कंटेनर ऑफ क्लासेस को हम नेम स्पेस कह देते हैं। अब उस नेम स्पेस क्लास के अंदर क्या होगा, देखें क्लास के अंदर को एट्रीब्यूट्स होंगे, मेथड्स होंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट्स इन सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी शार्प प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट। वो किस पे मुश्तमिल है? सबसे पहले प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम आपके सामने डिस्प्ले है। उस प्रोग्राम में क्या होगा? उस प्रोग्राम में नेम स्पेस होगी। नेम स्पेस में क्या होता है? क्लासेस होंगी। क्लासेस में क्या होगा? कुछ ना कुछ फंक्शंस, मेथड्स, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए आपने लिखे होंगे या कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये सारे का सारा आपके सामने स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। और कीप इन माइंड every C sharp program must have a class definition. Without class definition, you can't execute any statements. That's why namespace is a container for different classes. What is a class? In the next lecture, we will discuss in very much detail what is a class. Now let's move forward. Basic structure of C sharp program. As I repeated earlier, a C sharp program consists of namespace or namespaces, and namespace contains class or classes, and each class have members. Members can be attributes or method or function to perform specific task, or these members are written in the form of blocks, and these blocks contain a statement. This is the fundamental structure of C sharp program in graphical way. अगर हम उसको पार्ट्स की सूरत में देखना चाहें, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए सी शार्प प्रोग्राम? ए सी शार्प प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. नंबर 1 इज नेम स्पेस डिक्लेरेशन, एंड नेम स्पेस आफ्टर डिक्लेयरिंग नेम स्पेस, जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम में, अभी पहले प्रोग्राम में लिखा नेम स्पेस और हेलो वर्ड, here we are declaring a namespace, and that namespace contains a class. The name of that class was program, and that class contains methods. There is only one method, that is main, and that main method is performing a task. The task is to display using system console hello world. उसके उस मेन मेथड का या मेन फंक्शन का जो क्लास का मेंबर है, उसका काम क्या था कि स्क्रीन पे, सिस्टम का कंसोल स्क्रीन पे, विदाउट यूजिंग एनी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कोई विंडो नहीं, कोई लिस्ट बॉक्स नहीं, कोई फॉन्ट नहीं इस तरह का स्पेसिफिक, कोई कमांड बटन्स नहीं, बिल्कुल प्लेन, वो यूजिंग सिस्टम कंसोल, जो मशीन आप यूज कर रहे हैं उसकी स्क्रीन पे वो क्या लिख देता है? हेलो वर्ल्ड। और ये देखें मेन मेथड के अंदर क्या है? स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन। पहली स्टेटमेंट हमने उसमें लिखी कंसोल डॉट राइट लाइन। ये हमने क्या किया कि यूजिंग जो हम यूजिंग सिस्टम, मतलब हमने एक नेम स्पेस यूज की जिसका नाम है सिस्टम। वो नेम स्पेस
हमें एक एक क्लास प्रोवाइड कर रही है। सिस्टम के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन हमें कंसोल पे लिखवाने के लिए कंसोल की क्लास रिक्वायर्ड थी, तो हमने लिखा कंसोल डॉट, डॉट के बाद उस कंसोल क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से एक राइट लाइन है। हमने उस मेथड को यूज किया और राइट लाइन को हमने पैरेंथेसिस में जो पैरामीटर हमने आर्गुमेंट्स इस फंक्शन को पास किए उसने वो लिए, और कंसोल डॉट राइट लाइन मतलब कंसोल क्लास ने राइट लाइन का फंक्शन यूज करते हुए कंप्यूटर की आपके सिस्टम के कंसोल पे हेलो वर्ड डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट, अब सी शार्प प्रोग्राम में जनरली क्या होंगे, कमेंट्स होंगे। कमेंट्स में आल्सो बी इंक्लूडेड, चाहें तो इंक्लूड कर लें, इट्स ऑप्शनल सिंस components are ignored by the C sharp compiler. What are comments? नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए सी शार्प प्रोग्राम अनदर वे लें, देखें जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सी शार्प प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा यूजिंग हो सकती हैं। तो पहला सेक्शन किस पे मुश्तमिल है, यूजिंग डायरेक्टिव्स पे। दूसरा सेक्शन में क्या आ रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ नेम स्पेस, हेलो एप्लीकेशन, हेलो वर्ड, कोई भी आप नाम रख लें। अब उस नेम स्पेस डिक्लेरेशन, नेम स्पेस के अंदर क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, ये क्लास। अब क्लास के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने कहा पहले मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स क्या होंगे, को फंक्शन कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, या कुछ वेरिएबल्स होंगे, कोई वैल्यू जिन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं वो कंटेन करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी क्लास सिर्फ एक मेथड पे कंसिस्ट करती है और उस मेथड का नाम है मेन। अब मेथड में क्या होगा, मेथड कंटेन ब्लॉक्स, ब्लॉक ऑफ व्हाट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स that are executed by your machine. Here we also used comments. In blue box you can see a /* then hello program in C sharp, then it is ended on asterisk and /. What is this? This is comment, and it is totally ignored by the compiler. Why we are using comments here? Next we will discuss why we use comments. Next, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ऊपर हम एक नेम स्पेस यूज कर रहे हैं सिस्टम की, और ये नेम स्पेस कंटेन करती है बहुत सारी क्लासेस, उनमें से एक क्लास है कंसोल, और उस क्लास का एक मेथड है राइट लाइन। उसका क्या पर्पस है, उसको जो भी आर्गुमेंट या पैरामीटर दिया जाए वो उसको एज इट इज स्क्रीन पे कंसोल पे प्रिंट कर देता है। तो यहाँ हम हेलो लिख रहे हैं या हेलो वर्ड लिख दें, स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर उसी क्लास के अंदर एक और मेथड है, उसका नाम है रीड लाइन। अब ये क्या करता है, अगर हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं तो वो फौरन ही स्क्रीन को आउट कर देता है। हम इसको अब यहाँ रोकते हैं कि वो कोई वेट करे कि उसको कोई इनपुट मिले, रीड लाइन के वो जो भी हम इनपुट कर रहे हैं उसको रीड करेगा और उसके बाद प्रोग्राम को वो टर्मिनेट कर देगा। नेक्स्ट, अब इस प्रोग्राम स्ट्रक्चर को जरा देख लें इन सिंपल वे। यूजिंग सिस्टम डॉट नेट फ्रेमवर्क नेम स्पेस, ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ये फिर नेम स्पेस, ये नेम स्पेस, दिस इज द डिक्लेरेशन एंड नेम ऑफ नेम स्पेस इज हेलो वर्ल्ड, दिस इज द namespace declaration and its name is hello world. Next, class, it's what is this, हम देखते हैं भी उसको क्या करते हैं। ये प्रोग्राम ये में क्या बता रहा है, इस क्लास का नाम बता रहा है। अब देखें, फिर देखें कि कोई भी सी शार्प के, जैसे मैंने पहले भी बताया, ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रक्ट होते हैं, कुछ हैं ये कंसेप्ट्स हैं। पहला कंसेप्ट उसके अंदर प्रोग्राम था और उसी को हम लेके चल रहे हैं। प्रोग्राम में देखें नेम स्पेस आ जाएगी, ये नेम स्पेस, और ये नेम स्पेस किस पे मुश्तमिल होती है, क्लास में। अब यहाँ देखें हेलो वर्ल्ड इज द नेम ऑफ नेम स्पेस एंड द नेम ऑफ द क्लास इज प्रोग्राम। नेक्स्ट,
static void main is the method, name of the method is main. Similarly, here we are mentioning static a keyword. What do we mean by static? नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे ये एक्सेस मॉडिफायर्स या किस तरह से यूज होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक, तो वो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे। अब देखें प्रोग्राम स्ट्रक्चर विद कीवर्ड्स। अब यूजिंग क्या है? यूजिंग इज ए कीवर्ड, नेम स्पेस इज ए कीवर्ड, क्लास इज ए कीवर्ड, स्टैटिक इज ए कीवर्ड, वाइड इज ए कीवर्ड, स्ट्रिंग इज ए कीवर्ड। ये आप देख रहे होंगे जितने भी कीवर्ड्स हैं, दीज कीवर्ड्स आर अंडरलाइंड बाय रेड लाइन। अब आप देखें एक सी शार्प प्रोग्राम में जैसे मैंने बताया एक खास सिंटैक्स होगा, तो ये कीवर्ड हमें कहाँ से मिले? ये हमें उस लैंग्वेज के लेक्सिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनसे हमें ये कीवर्ड्स मिले। उन कीवर्ड्स की मदद से हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और सिंटैक्स हमें डिक्टेट करता है द ऑर्डर ऑफ द कीवर्ड्स, द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। उस सी शार्प की लैंग्वेज की ग्रामर को यूज करते हुए हमने ये प्रोग्राम लिखने की कोशिश की। आज हमने क्या इस लेक्चर में देखने की कोशिश की, सी शार्प के मेन जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं। वो 5 ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट हैं, बार बार रिपीट किए देते हैं, पहले भी रिपीट किया फिर कि सी शार्प में सबसे पहले नंबर पे प्रोग्राम है, फिर प्रोग्राम में क्या है, नेम स्पेसिस है, नेम स्पेसिस क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, फिर क्लास क्या चीज है, क्लास इज ए डेटा स्ट्रक्चर, इट्स अगेन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, different methods or functions. And what are methods? Methods is a statement block to perform specific task. हम उस मेथड का कोई ना कोई नाम रख लेते हैं, जैसे कि इस सूरत में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मेन, दिस इज द मेथड ऑफ प्रोग्राम क्लास एंड इट्स नेम इज मेन। प्रोग्राम स्ट्रक्चर को फिर आप देखें ये मुख्तलिफ स्टाइल से आपको बताने की कोशिश की गई है ताकि ये आपके जहन में बैठ जाए कि ये किस तरीके से चल रहा है। अब देखें यहाँ कुछ नई टर्म्स आ रही हैं, वो नई टर्म्स भी हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ड, इंस्टेड ऑफ पासिंग हेलो वर्ड डायरेक्टली टू राइट लाइन, हमने क्या किया, हेलो वर्ड को यहाँ एक मैसेज मतलब में रखा जिसको हम वेरिएबल कह रहे हैं, और वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब आगे देखेंगे व्हाट इज ए स्ट्रिंग, और मेरा ख्याल है आपने पहले भी कुछ कोर्स पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा स्ट्रिंग क्या चीज़ है, वेरिएबल क्या चीज़ है। तो हमने उसको चेंज करने की कोशिश की, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, इन द एंड लेट्स समराइज what we have learned in today's lecture. In this lecture, we started our discussion from our previous C# Hello World program. Then we learned the basic elements of C# and then we learned the structure of C# program. That is the core organizational concept in C# programming language. का मतलब क्या कि आपको मालूम होना चाहिए कि सी शार्प में प्रोग्राम किन चीजों पर मुश्तमिल होता है। नो नेक्स्ट वी डिस्कस्ड द कंपोनेंट्स ऑफ सी शार्प प्रोग्राम बाय डिस्कसिंग द सिंटैक्स, द रूल्स और ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज एंड द सिमेंटिक्स ऑफ द सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड देन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग of syntax and semantics of any programming language. These are the few of the concepts that we have tried to discuss. मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज के प्रोग्राम से कुछ ना कुछ सीखने की, आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे मैं भी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सी शार्प प्रोग्राम के जो बाकी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे और कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, और अगर कुछ टाइम बचा तो फिर हम एक और नेक्स्ट प्रोग्राम भी लिखने की कोशिश करेंगे।
आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप थोड़ा सा अपने तौर पर इस सी शार्प के पहले प्रोग्राम की प्रैक्टिस करें, इसको चेंज करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक। और जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। जैसे नेम स्पेस क्या चीज़ है, नेम स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से हैं, यूजिंग का क्या रोल है, कमेंट्स क्या हैं, इसी तरीके से जैसे कीवर्ड्स क्या हैं, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, वाइट स्पेस क्या है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स हैं। और अच्छी उम्मीद के साथ हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।